Hello everyone. Welcome to the new lecture of Basics of Civil and Mechanical Engineering. As you all know that we are studying about the fundamentals of building material, and we have almost discussed the top five materials, that is stone, brick, mortar, PCC, and RCC, and construction chemicals also. So today we will continue this topic, and we will try to finish this building material topic in today's lecture. So the remaining materials is structural steel, okay, high tensile steel, carbon composites, plastic in constructions, 3D printing, and recycling of construction demolition waste. Okay, so if you remember, we have in last lecture we have studied about the chemical construction chemicals. Okay, so today we will try to cover that structural steel, high tensile steel, and carbon composites, then plastic in construction, and what is the 3D printing. Okay, then after that, the last topic would be recycling of construction and demolition waste. Okay, we will try to cover this much material today. Okay, so let's get started. Okay, so first will be the structural steel. So let's see what is steel and how steel is used in construction and what is the specialty of steel. Okay. So as you can see, reinforcing steel और construction steel both are same. कंस्ट्रक्शन स्टील जो हम स्टील जो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं वो हम देखेंगे, उसे हम रेनफोर्सिंग स्टील भी बोलते हैं, ठीक है ना. वी कैन कॉल इट एज रेनफोर्सिंग स्टील ऑल्सो. ओके, बोथ आर सेम. सो व्हाट इज स्टील? ओके, स्टील is an alloy of ferrous metal with 0.25 to 1.5% of carbon. Higher the carbon content, harder is the steel. Now, this sentence is important. Higher the carbon content, harder is the steel. जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहेगा उतना ही स्टील हार्ड रहेगा. बट कार्बन कंटेंट शुड ऑल्सो बी इन द लिमिट. ओके, उसकी भी एक लिमिट है. कार्बन कंटेंट जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो स्टील करोड़ भी होता है उसमें, ठीक है. तो इसलिए कार्बन कंटेंट शुड बी इन द प्रॉपर लिमिट. तो स्टील क्या है? स्टील एक अलॉय है, ठीक है ना, फेरस मेटल का, जिसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है? 0.25 टू 1.5% ऑफ कार्बन होता है उसमें, ठीक है ना. और जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहेगा स्टील वुड बी हार्ड. ओके, सो स्टील बार्स ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस आर मेनली यूज्ड एज रेनफोर्समेंट टू स्ट्रेंथन द कंक्रीट स्ट्रक्चर. स्टील बार जो कि सर्कुलर सेक्शन के होते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ये आपने देखे है ना, इस तरीके से सर्कुलर सेक्शन के जो स्टील बार्स है, दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. व्हाई दे आर यूज्ड? टू स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर. कंक्रीट स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कंक्रीट स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उसे और बढ़ाने के लिए रेनफोर्सिंग स्टील यूज करते हैं. नाउ इफ यू रिमेंबर, इन द फर्स्ट lecture we have discussed about the concrete and steel both, and in that lecture I have told you that concrete is strong in compression but steel is strong in tension. So whenever we construct any component of structure, for example suppose a column or a beam, okay, so all the compressive load will be taken by the concrete and all the tension will bear by the steel. So steel is very strong in tension. The combination of concrete and steel is very effective. Okay, so there are three type of reinforcing steel. Now as you all know, we are dealing with the steel part, so we will study about the steel only. So steel is strong in tension and there are three types of steels. First is mild steel. Okay, mild steel. Second is high yield strength deform bar. High yield strength deform bar. It is also called as HYSD in short. And then Torr steel. Okay, it is high yield strength deform bar is also called as Torr steel. Okay, okay. So Torr is nothing but a brand name. Okay, Torr is like Steel Corporation. That is a brand name, Torr steel. They made HYSD bars. And after that is a high tensile steel. Okay, so these are the types of steel. So let's see one by one. The first is the mild steel. Mild steel में क्या है? Mild steel have a carbon content up to 0.23 to 0.25, which is less. Okay, comparatively carbon content of mild steel is less. Okay, so it contains carbon content of
0.23 to 0.25. Higher value is permitted for bar of 20 mm and above diameter. The carbon content may increase for the bar of more than 20 mm. It is available in the diameter of, now this is very important, the diameter of mild steel bar 6, 10, 12, 16, 20, 25 and 32 mm. जो बार अवेलेबल है माइल्ड स्टील उसका जो डायमीटर है जो मार्केट में जनरली अवेलेबल होता है वो होता है 6, 10, 12, 16, 20, 25 एंड 32 mm. The yield strength, this is very important. Mild steel's yield strength, okay, the deforming strength when we test the mild steel, जब हम mild steel को टेस्ट करते हैं, जब स्ट्रेच करते हैं उसे टेंशन में, जब हम उसे टेंशन की तरह इस तरह खींचते हैं दोनों साइड से, फॉर एग्जांपल टेंशन में जब हम इसे टेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम, जो भी ये सेक्शन रहेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक माइल्ड स्टील का सेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो टेस्ट करेंगे वो एक इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और एक इस डायरेक्शन में। तो ये माइल्ड स्टील को तब तक स्ट्रेच करेंगे जब तक इसमें यहाँ पे क्रैक डेवलप ना हो जाए, ठीक है। ये जो माइल्ड स्टील बार है इसे इस तरह हम टेंशन प्रोवाइड करेंगे, ये टेंशन का साइन हो गया अवे फ्रॉम द डायरेक्शन बोथ, तो ये टेंशन आएगा इसमें, और जब पहला क्रैक, द फर्स्ट क्रैक अपीयर्स, जब वो क्रैक अपीयर होगा तो वो कितने लोड पे अपीयर हुआ वो होती है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये जो आएगा, ठीक है ना, जो मुड़ेगा यील्ड होगा, ठीक है ना, यील्ड स्ट्रेंथ जो होगी उसकी 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो ये माइल्ड स्टील कितनी होती है याद रखेंगे, 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और द यंग मॉड्यूलस 2 into 10 raised to power 5, okay, this is 2 into 10 raised to power 5 Newton per mm square, okay. So after mild steel, see mild steel कहाँ यूज करते हैं, जनरली it was very commonly used in reinforcing in concrete. मैं आपको माइल्ड स्टील का सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने ये देखे होंगे कि कॉलम्स का जो सेक्शन होता है, ठीक है ना, कॉलम का सेक्शन में आपने देखे होंगे कि उसके एक वर्टिकल बार्स होते हैं, इस तरीके से वर्टिकल बार्स होते हैं, है ना, वर्टिकल बार होते हैं, और इस तरीके से बीच में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लॉन्गिट्यूडिनल बार होते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल बार होते हैं, ठीक है ना, उसे हम जनरली माइल्ड स्टील के होते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ विंडो बार फॉर ग्रिल फॉर मेकिंग स्टील गेट्स, जो कि यहाँ पे भी इसका यूज आता है, ठीक है, माइल्ड स्टील का। नेक्स्ट इज हाई यील्ड, नेक्स्ट इज हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, HYSD और टोट स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली कंस्ट्रक्शन में ये एज अ मेन बार यूज होता है, ठीक है। मेन बार जो होता है वो HYSD होता है और सेकेंडरी जो बार होते हैं वो माइल्ड स्टील होते हैं। सो HYSD का क्या खासियत देखते हैं हम, these bars are provided with ribs deformation on the surface so that bond between concrete and steel improves। ये जो बार होते हैं इसमें देखिए इस तरीके से रिब्स होते हैं, देखिए इस तरीके कॉर्रुगेटेड स्टील है, देखिए इस तरीके से रिब्स है, इसलिए ताकि बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो कंक्रीट और स्टील के बीच में। इस तरीके से हम इसे रिप करते हैं, और जब माइल्ड स्टील हो बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है, उसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं होते। ये भी एक माइल्ड स्टील और HYSD की पहचान है, ये एकदम प्लेन होता है और इसमें इस तरीके से रिप्स किए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। और इसका जो डायमीटर है वो भी 8, 8, 10, 12, 16, 20, 22, ये थोड़े ज़्यादा वेराइटी में अवेलेबल है, 25, 28, 32 mm तक के अलग अलग साइज़ के ये इनके डायमीटर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इसके यूजेस, हमेशा जो माइल्ड HYSD वो हमेशा एज अ मेन बार यूज करते हैं हम, कॉलम बीम स्लैब हर जगह, ठीक है। Nowadays these bars are replacing mild steel bars as reinforcement since their strength in tension bond is higher। अब हमेशा HYSD मैक्सिमम यूज किया जाता है, ठीक है ना, इसे एज अ विंड बार भी हम यूज करते हैं, मेन बार एज अ मेन बार इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम हाई टेंसाइल स्टील क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये स्टील, ठीक है ना, कहाँ यूज करते हैं क्या होता है देखते हैं इसे। हाई टेंसाइल स्टील बार्स आर मेड विथ 0.8 to 0.6% मैग्नीज अपार्ट फ्रॉम स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो इसमें 0.8% कार्बन होता है और 0.6% मैग्नीज होता है इसमें, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दीज वायर्स इन्वॉल्व कोल्ड ड्राइंग एंड टेम्परिंग, दीज आर यूजुअली अवेलेबल इन
2, 3, 4, 5, 6, 7 mm। आपको इसको समझ में आएगा। हाई टेंसाइल स्टील इज नथिंग बट वायर्स। ये जो वायर होते हैं ना, स्टील वायर्स, वो है ये, ठीक है। ये देखिए इनके साइज 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm तक के डायमीटर में अवेलेबल है। जो वायर्स होते हैं स्टील के वायर्स, उसे हम हाई टेंसाइल स्टील बोलते हैं, ठीक है। दे में बी बंडल्ड विद नंबर ऑफ देम टू फॉर्म अ स्ट्रैंड। इसमें बंडल में भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। These bars are having tensile strength as high as 1400 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू 1900 न्यूटन पर mm। जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। The young modulus of steel is also same as that of mild steel, और young modulus mild steel की जगह सेम है, 2:10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। Okay, so this is the high tensile steel। Okay, इसके यूजेस देख लीजिए। हाई टेंसाइल स्टील के देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से छोटे छोटे से जो साइज में अवेलेबल है। हाई टेंसाइल स्टील बार इज reinforces used in pre-stress concrete। हमने लास्ट टाइम देखिए pre-stress कंक्रीट में वायर की जैसा हम स्ट्रेच करते हैं कंक्रीट को, जो वायर है वो हाई टेंसाइल स्टील है, ठीक है। स्टील के जो ग्रेड है वो 3 है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ग्रेड्स ऑफ स्टील अवेलेबल होते हैं। 250 Fe 250, Fe स्टैंड फॉर फेरस, ठीक है ना। फेरस 250, फेरस 415 एंड Fe 500। अब ये जो नंबर है ये इंडिकेट कर रहा है इसकी स्ट्रेंथ को। अगर आपको याद हो माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ कितनी थी, ये स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो HYSD है वो 2 इसमें अवेलेबल है, 415 भी आता है और 500 भी आता है, ठीक है। ये दोनों में अवेलेबल है HYSD, ठीक है। तो ये था स्टील के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट जो मटेरियल है वो कौन से है। तो अगर हम हमारी PPT में देखेंगे तो जो नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील और कार्बन कंपोजिट से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। Now the last three is plastic in construction, 3D printing and recycling of construction and demolition waste। तो हम इसे थोड़ा देख लेते हैं, लास्ट के जो हमारे मटेरियल्स बचे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लास्टिक जो है वो कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज करते हैं। देखिए यूज ऑफ प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन। देखिए many construction companies are using plastic material। The component used include everything from the plastic screw hinges to bigger plastic part that are used in decoration, electric wiring, flooring, wall covering, waterproofing। आप देखते होंगे आपके घरों में भी प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। प्लास्टिक के पाइप्स है, प्लास्टिक की वॉल भी होती है, ठीक है ना। उसके अलावा कवरिंग जो रूफ होता है उसमें भी प्लास्टिक की शीट होती है, फ्लोर पे भी प्लास्टिक की शीट हम प्रोवाइड करते हैं कई दफ़ा। तो प्लास्टिक इज़ अ वेरी गुड मटेरियल, ओके ना। इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, हल्का बहुत लाइट वेट होता है, तो आसानी से इंस्टॉलेशन और रिमूवल हो जाता है। तो प्लास्टिक जो है वो एक अच्छा मटेरियल होता है जिसमें हम कंस्ट्रक्शन में जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग को कवर करने के लिए भी हम प्लास्टिक के वो उसकी केसिंग लगाते हैं। डेकोरेशन होता है प्लास्टिक मटेरियल का, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे आप इस इमेज को देखोगे तो एक नॉर्मल वॉल है, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल वॉल में ये क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक के एक तरह की पूरी कोटिंग कर दे रहे हैं प्लास्टिक मटेरियल से। इसका रीज़न क्या है कि बाहर की अगर कोई नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह है वो अंदर के रूम में नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक का कोटिंग कर रहे हैं। प्लास्टिक एक अच्छा इंसुलेशन मटेरियल है, ठीक है ना। इसकी वजह से एनर्जी सेविंग भी होती है। तो इसके बाद देखते हैं हम टिपिकली कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स सेलेक्ट प्लास्टिक मटेरियल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी। प्लास्टिक इज वेरी ड्यूरेबल, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, ठीक है ना। भले although it is a lightweight material but it is also very strong material। तो ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है और काफ़ी लंबा चलता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आप देखोगे प्लास्टिक और स्टील कंपेयर करोगे, अब कोई और मटेरियल को प्लास्टिक से कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड आउट दैट द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक इज कंपेरेटिवली लेस, ओके। रिसाइकलिंग हो जाता है प्लास्टिक का, आप दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में प्लास्टिक का कोई कंस्ट्रक्शन था, आप उसे रिमूव, अगर घर का डेमोलिशन वगैरह करोगे तो प्लास्टिक का रीयूज़ होता है, ठीक है ना। एनर्जी सेविंग है, जैसे कि अभी मैंने बताया, नॉइज़ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को कम करता है। जैसे कि ये वॉल अभी जो बनी है ये थर्मल इंसुलेशन होता है, साउंड इंसुलेशन, तो एनर्जी सेविंग भी प्लास्टिक मटेरियल होता है। सेफ्टी है, सेफ है काफ़ी, इसका रिमूवल ईजी है, इंस्टॉलेशन ईजी है, ठीक है ना। तो ये अगर किसी के अगर सपोज फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर गिर गया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेफ्टी इसमें काफ़ी हल्का मटेरियल तो सेफ है। इजी टू इंस्टॉल क्योंकि है, लाइट वेट है, रिमूव भी आसानी से हो जाता है और इंस्टॉल भी आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्लास्टिक के बारे में थी इन्फॉर्मेशन। आगे देखते हैं इसका यूज़ क्या है।
यूज ऑफ प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, यूज ऑफ प्लास्टिक इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए फ्लोरिंग, यहाँ पे देखिए सबसे पहले फ्लोरिंग किसकी है, कंक्रीट की फ्लोरिंग तो होती है, लेकिन उसके ऊपर टाइल्स लगाने से अच्छा या कोई और मार्बल वगैरह से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये प्लास्टिक की शीट लगाते हैं। इस तरीके से देख रहे होंगे आप, ये मटेरियल देखिए यहाँ पे एरो जहाँ पे कर्सर, ये इस तरीके से शीट लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, वाटर की एंट्री को रोकेगा, ठीक है ना, सरफेस एक अच्छा सरफेस प्रोवाइड करेगा और काफ़ी सस्ता होगा एज कम्पेयर टू टाइल्स मार्बल्स, इनसे सस्ता होगा, ठीक है। आफ्टर दैट रूफिंग, सेकेंड फ्लोरिंग के बाद क्या है, रूफिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। ये शीट आपने देखे होंगे, ठीक है ना, ये GI शीट होती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो सीमेंट शीट्स होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, एस्बेस्टस की भी आती है। इसमें डबल शीट होती है, देखिए नीचे एक शीट होती है और ऊपर इस तरीके से एक और शीट होती है। तो ये क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखती है शीट, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी प्लास्टिक शीट का यूज़ किया जाता है। ये भी हल्की होती है और आसानी से रिमूव हो सकती है। इसके अलावा टीन की शीट होती है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो काफ़ी बेटर है क्योंकि वो हल्का है। उसके बाद देखिए इंसुलेशन, अभी हमने देखिए इंसुलेशन के लिए किस तरीके से ये इसमें हमने देखे थे, इस इमेज में देखिए इस तरीके से प्लास्टिक की कोटिंग प्रोवाइड की जा रही है ताकि इंसुलेशन, नॉइस इंसुलेशन हो या फिर साउंड इंसुलेशन हो। इसके अलावा वॉल देखिए, पार्टीशन वॉल, प्लास्टिक की पार्टीशन वॉल आपने हमेशा देखोगे ऑफिसेस में या ठीक है ना कोई वर्किंग प्लेस पे, इस तरीके से प्लास्टिक की वर्टिकल वॉल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि आप बोल सकते हो इससे ये डिवाइड करती है रूम को, ठीक है ना, इसे पार्टीशन वॉल भी बोलते हैं। तो वॉल जो है वो पार्टीशन वॉल की एज अ प्लास्टिक वॉल भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा पाइप्स तो कॉमनली आपने देखे हैं कि प्लाई पे देखिए एग्जाम्पल, पाइप मटेरियल हमेशा प्लास्टिक होता है, स्टील भी होता है लेकिन सबसे अच्छा है वो प्लास्टिक है, आसानी से फिक्स, आसानी से रिमूव हो जाता है, ठीक है ना, प्लास्टिक और करोड भी नहीं होता है जल्दी, ठीक है। प्लास्टिक एक बहुत अच्छा पाइप का मटेरियल तो है ही है। इसके अलावा डोर्स और विंडो में देखिए, डोर्स और विंडो भी प्लास्टिक की आपने देखी है, डोर विंडो प्लास्टिक की होती है, काफ़ी अच्छी होती है, ड्यूरेबल भी होता है। डोर विंडो प्लास्टिक के बहुत यूज़ होते हैं आजकल, ठीक है। तो ये था प्लास्टिक के बारे में। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, 3D प्रिंटिंग इन कंस्ट्रक्शन। 3D प्रिंटिंग जो है वो टेक्नोलॉजी नई नई है, पुरानी ही टेक्नोलॉजी है, बट इसका यूज़ बहुत रेयरली किया गया है, जबकि ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, ठीक है। अब 3D प्रिंटिंग क्या होती है कंस्ट्रक्शन में, ये सिलेबस में नया ऐड हुआ है, इसके पहले सिलेबस में नहीं था। तो 3D प्रिंटिंग क्या होती है बेसिकली, देखिए layers of material are pasted on the top of each other to create an detailed structure। ये देखिए इस तरीके से ये लेयर वाइज जो है ना मटेरियल को एक के ऊपर एक टॉप पे एक के ऊपर एक रखा जाता है, अरेंज किया जाता है, ठीक है, ताकि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाए। जैसे कि ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, दिस बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इसमें लेयर वाइज ये एक लेयर है, जैसे कि इसकी ना ये लेयर वाइज बनी हुई है, ठीक है ना, एक लेयर ये होगी इसके ऊपर, आफ्टर दैट ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरीके से लेयर वाइज ये बिल्डिंग बनी है। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख रहे हैं मटेरियल का, ठीक है ना, ये एक जिप्सम मटेरियल है, ठीक है, जिप्सम मटेरियल का ये एग्जांपल है बिल्डिंग का। तो देखिए जिप्सम का मटेरियल लेयर वाइज एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। This is the futuristic world of 3D printing in construction, where robotic arms are automatically squeeze layer of cement, plastic and other material onto a foundation and build a structure, ठीक है ना। ये देखिए इसमें क्या होता है 3D प्रिंटिंग में, रोबोटिक आर्म यानी कि एक रोबोट को हम कमांड डालते हैं रोबोट में, और वो रोबोट जो है पूरे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने में हेल्प करता है। उसमें जो भी मटेरियल, चाहे वो सीमेंट हो, प्लास्टिक हो, कोई भी मटेरियल हो, उसमें वो मटेरियल को लेयर वाइज हम इस तरीके से अलग से बना के रख देते हैं, और जो रोबोट्स है वो कमांड देता है क्रेन को, और क्रेन इसे एक के बाद एक लिफ्ट उठाकर एक के ऊपर एक लेयर को अरेंज कर देता है, चाहे वो कोई मटेरियल हो, जैसे कि इसमें जिप्सम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये होता है 3D प्रिंटिंग होता है, इसको और हम देखते हैं अच्छे से कि 3D प्रिंटिंग क्या है। 3D printing in construction can either evolve the use of 3D printer attached to an arm which is effectively builds a project on site, or the use of printer in the factory which create component of building project that are assembled later। देखिए इस तरीके से हमने मटेरियल, देखिए ये भी लेयर वाइज है, देखिए लेयर दिख रहा है आपको, इस तरीके से कि ये रोबोटिक आर्म है,
ठीक है ना, क्रेन से अटैच्ड है। ये क्या करेगा, मटेरियल को एक के ऊपर एक इस तरीके से, देखिए मटेरियल को एक के ऊपर एक अरेंज कर देगा। ठीक है, तो ये हम रोबोट की मदद से करते हैं। ठीक है, इसमें कैसा वर्क कैसा करता है देखते हैं। देखिए, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टेल्स द प्रिंटर अबाउट द डायमेंशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट। पूरा डायमेंशंस, उसकी लोकेशन, सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में हम रोबोट में इस तरीके से फीड कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो कमांड उसको देते जाते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द कमांड काम करता है। द प्रिंटर दैट देन इंजेक्ट्स मटेरियल ऑन अ प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान। जैसे हमने प्लान में उसे फीड की इन्फॉर्मेशन, उसी तरीके से वो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मटेरियल को एक के ऊपर एक अरेंज करता जाएगा। 3D printers often use liquid metal, plastic, cement and variety of other material which then cool or dry to form a structure. चाहे वो मटेरियल कोई भी हो, वो हम 3D प्रिंटर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आप मुश्किल ज़रूर है बट फास्ट है। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है इसमें, देखिए ये जो बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये बिल्डिंग देखिए, पहले इसको देख लेते हैं हम। In December 2019, 3D printing robot firm Apis Corporation announced it had completed the world's largest individual 3D printing building. The office block, built in UAE, is 9.5 meter high and has a floor area of 640 meter square. ये एक बिल्डिंग है जो कि यूएई में बनाई गई है 2019 में। ठीक है ना, ये 3D प्रिंटिंग का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एपिस कॉर्पोरेशन ने बनाई है 3D प्रिंटर, उन्होंने बनाया है। ठीक है ना, Apis Corporation 3D printer was moved around the open air side by a crane as it built different parts of the structure. देखिए किस तरीके से ओपन एयर में, देखिए इस तरीके से रोबोट काम करता है। देखिए मैंने जैसे बताया लेयर वाइज मटेरियल को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते गए, इस तरीके से हमने, ये क्या हुआ, लेयर वाइज काम करता है। ये जिप्सम मटेरियल का पूरा मटेरियल बिल्डिंग है। ठीक है, लेयर वाइज ये रोबोट कमांड देता है और क्रेन के जरिए फटाफट एक के ऊपर एक हम इसको रखते जाते हैं। इस तरीके से बिल्डिंग फॉर्म हो जाती है। ये 3D प्रिंटर का एक एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर, ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे मटेरियल टॉपिक का, दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। आपने हमेशा देखे होंगे कि बिल्डिंग जब कोई हम डिमोलिश करते हैं तो कितना सारा मटेरियल उसमें से वेस्ट निकलता है। अब वो जो वेस्ट निकल रहा है बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन जब हम उसे डिमोलिश करते हैं, कोई भी पुरानी बिल्डिंग हो गई, कोई भी डैम स्ट्रक्चर है, कोई भी जिससे कोई यूज़ नहीं है, उसे हम डिमोलिश कर देते हैं। डिमोलिश करने के बाद वो मटेरियल कहीं पर भी हम उसे डिस्पोज करते हैं या कहीं पर भी उसे फेंक देते हैं, तो वो क्या होता है, मटेरियल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है ना, एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा वो मटेरियल, इकोलॉजिकल सिस्टम को हार्म करेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या करते हैं, इसे ना कि हम डिस्पोज करने की बजाय we will try to recycle this material. Okay, and when we recycle this material, what will happen, that then environmental it affects the environment if we dispose it in different places, but if we try recycle this material, it will be very helpful for environment, as well as it will be very less effective, less cost effective. Okay, cost will be less. सो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कोई चीज़ को डिमोलिश करें, अगर हम उसे दोबारा यूज़ करें, इफ यू ट्राई टू रिसाइकल दैट मटेरियल, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है मटेरियल का वो भी कम होगा, दूसरा मटेरियल का, उसके साथ साथ कॉस्ट जो है वो भी कम लगेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं हम, द इफेक्टिव फेस राइजिंग इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल थ्रेट फ्रॉम द वेस्ट कंक्रीट एंड फ्रॉम द सम ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट, रिसाइकलिंग हैज बिकम नीड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कोई भी चीज़ वेस्ट जो निकलती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में से कोई केमिकल निकल रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन में से जो कंक्रीट जम निकलता है, ठीक है ना, ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इनका रिसाइकलिंग करना एक बहुत बड़ी हमारी एक ज़रूरत बन चुकी है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा रिसाइकलिंग मटेरियल जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द कॉन्क्रीट रबल। ठीक है ना, कॉन्क्रीट रबल मटेरियल होता है, इसे हम कैसा यूज़ करेंगे वो देखते हैं। हम अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा क्रशर डस्ट है, उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लाई ऐश है, ये आपने सुने होंगे ना, फ्लाई ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये भी आपने सुने। ठीक है ना, तो ये चार मटेरियल है रिसाइकलिंग, जिसकी रिसाइकलिंग अच्छी होती है कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला कंक्रीट रबल देखते हैं, ये कैसा हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। देखिए, कंक्रीट रबल इज मेनली रिसाइकल्ड एज एन एग्रीगेट फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू कंक्रीट।
आप देखिए जैसे कि एग्जांपल है, ये एक बिल्डिंग का डेमोलिशन हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कंक्रीट के इस तरीके से टुकड़े पीसेस है। अब इन पीसेस को हम क्या करेंगे, इसे हम कोशिश करेंगे कि हम इसको क्या बनाए, एग्रीगेट बनाए। नाउ एग्रीगेट, व्हाट इज एग्रीगेट? एग्रीगेट हम इसे एज अ गिट्टी, जिसे हम हिंदी में गिट्टी बोलते हैं, ठीक है ना। जो एग्रीगेट, जैसे मैंने बोला था कि हम मुझे कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे हमेशा। जो गिट्टी है, इसकी बनती है गिट्टी, और इसका यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसे बोला जाता है कॉन्क्रीट रबल, इसे बोला जाता है कॉन्क्रीट का रबल। जो गिट्टी हम ऐसा क्या करेंगे, इसको गिट्टी की तरफ छोटे छोटे इसके टुकड़े करेंगे, और इसको क्या करेंगे, सीमेंट के फॉर्मेशन में यूज करेंगे, कंक्रीट के फॉर्मेशन में दोबारा दोबारा से मिक्स करेंगे सीमेंट सैंड, और उसके साथ में ये कंक्रीट रबर डाल देंगे। तो फिर क्या होगा, ये एक तरीके का रिसाइकल मटेरियल हो गया। हमने गिट्टी कहीं और से नहीं मंगाया, हमने जो वेस्ट निकला उसी को गिट्टी बना के यूज की। सो दिस इज कॉल्ड एज कंक्रीट रबर। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये एक्चुअल जो हमें मिल रही है उससे तो थोड़ी सी कम ही होगी, क्योंकि टूटा हुआ मटेरियल है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है। The strength of recycled aggregate concrete is about 10 to 15% less compared to the concrete with fresh aggregate. जो फ्रेश एग्रीगेट है उससे 10 to 15% ही कम है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि कॉस्ट कितना कम है। यहाँ आपको फॉर एग्जांपल 10 रुपये लग रहे हैं, 10 रुपीज़ आपको करना है, वहाँ आपके 60 रुपीज़ लगेंगे। हालांकि स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, बट उसका हम एक और वो कर सकते हैं कि हम जो 10 to 15% कम है, इसकी जगह हम थोड़ा सा कॉन्क्रीट रबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। या कोई नया केमिकल इसमें ऐड करके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो इसमें बचेगा ज़रूर। रिसाइकल्ड कंक्रीट कैन बी सेफली यूज इन प्लेन कंक्रीट। ये मैक्सिमम प्लेन कंक्रीट में यूज करते हैं जहाँ पे स्टील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। विद प्रॉपर करेक्शन एंड मिक्स डिजाइन इट कैन बी यूज फॉर आरसीसी वर्क ऑल्सो। ये बीम कॉलम में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर हम उसके मिक्स को, यानी मिक्स मतलब हम यहाँ पे बात करें, मिक्स का मतलब होता है कितना सीमेंट लेना है, कितना सैंड लेना है। अगर इसका प्रोपोर्शन हम बराबर रखेंगे तो ये और बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था कंक्रीट रबर, याद रखिए। नेक्स्ट चीज है कंक्रीट डस्ट। देखिए, क्रशर डस्ट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रशिंग ऑफ रॉक ऑब्टेन कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द कंक्रीट। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपने ऑब्टेन किया, अब उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, क्रश जब करते हैं इसे गिट्टी बनाने को, जब हम इसे प्रोसेस में जब हम इसको एग्रीगेट बनाते हैं, कोर्स एग्रीगेट गिट्टी बनाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे कंक्रीट डस्ट निकलता है, ठीक है। ये होता है क्रशर डस्ट, ठीक है ना, कुछ पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है, द डिस्पोजल ऑफ दिस डस्ट इज अ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो अब क्या करोगे आप, आपने रिसाइकल करने की कोशिश की है, लेकिन उसका भी एक बाय प्रोडक्ट निकला, वो भी एनवायरमेंट को हार्म करेगा। तो हम क्या करेंगे, उस बाय प्रोडक्ट को भी हम वी विल ट्राई टू यूज दैट बाय प्रोडक्ट ऑल्सो, ओके। जब हम गिट्टी बनाने जा रहे हैं तो उसका भी एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, कुछ मटेरियल पूरी तरीके से क्रश होकर जो एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो भी एनवायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है। सो वी विल ऑल्सो यूज दैट बाय प्रोडक्ट। तो हम उस बाय प्रोडक्ट को बोला जाता है क्रशर डस्ट। तो इस क्रशर डस्ट को हम क्या करेंगे, इस क्रशर डस्ट को हम यूज करेंगे कंक्रीट में। कैसा? इट इज पॉसिबल टू यूज दिस क्रशर डस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट एंड mortar by partial और full replacement of natural sand। यानी कि हमने गिट्टी का भी एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, और अब हमने क्रशर सैंड में के रूप में नेचुरल सैंड को पार्शियल या फुल्ली भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसे हम एज अ सैंड जो निकल रहा है ये पाउडर, इसे एज अ सैंड मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। This will not only save the cost of construction, but at the same time it will solve the problem of disposal of the crushed dust। इसका डिस्पोजल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम हो जाएगा ये क्रशर डस्ट। तो ये था दूसरा मटेरियल, रिसाइकल मटेरियल। अब देखते हैं नेक्स्ट, फ्लाई ऐश। ऐश तो आप लोगों को पता है क्या होती है, ठीक है ना। अब इसको फ्लाई ऐश क्यों बोलते हैं, जरा ये देख लेते हैं। फ्लाई ऐश इज द बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट आपने हमेशा देखे होंगे, ठीक है ना, जैसे कि कोराडी थर्मल प्लांट है, इस तरीके से अलग अलग थर्मल प्लांट है। यहाँ पे क्या होती है, डस्ट निकलती है, ऐश निकलती है, ठीक है ना। वो जो ऐश मटेरियल जो निकल रहा है, ठीक है ना, वो इतने उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इट इज सच अ स्मॉल पार्टिकल्स दैट दिस डस्ट कैन फ्लाई। ये जो डस्ट है ये फ्लाई कर सकती है एयर में, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज फ्लाई ऐश, ओके। The thermal plant owners take all care to prevent it from flying in the air and dump in the wet pond, ठीक है ना। इसको कैसा पहले डिस्पोज किया जाता था कि इस पूरी तरीके से पैक कर देते थे थर्मल पावर प्लांट में,
और ये पार्टिकल्स को कलेक्ट करके एक कोई भी डंपिंग यार्ड में जहाँ पे वेट पॉन्ड है, जो जहाँ पे कोई लेक है, कोई कोई जगह है, वहाँ पे इसको डाल दिया जाता था। लेकिन वो क्या करती थी, वो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती थी पॉन्ड में, जो भी एनिमल्स है नदी में, लेक में, वहाँ पे वो उसके उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो इसके लिए क्या किए, फ्लाई ऐश का दूसरी जगह यूज़ कैसा होने लगा। Till 15 to 20 years ago, it was treated as a waste and disposal as a serious problem. This gave rise to research to utilize fly ash. जो जब ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने लगी तो इसकी रिसर्च होने लगी कि इसका कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो इसके जो यूजेस सामने आए वो बड़े अच्छे यूजेस है, जैसे कि देखिए, नाउ इट इज़ फाउंड दैट यूजफुल मटेरियल इन द फॉलोइंग वर्क्स। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए, इट डिपेंडेबल रिसोर्स मटेरियल फॉर brick production. 40 to 50% fly ash can be used with the 25 to 30% sand, 10 to 15% lime and 10 to 15% gypsum to produce strong durable brick. आपने एक कंक्रीट के कलर की ग्रे कलर की ब्रिक देखी है, वो ग्रे कलर की ब्रिक को बोला जाता है फ्लाई ऐश ब्रिक, और बड़ी हल्की ब्रिक है और काफ़ी अच्छी ब्रिक है, जिसे हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो 40 to 50% फ्लाई ऐश का मटेरियल हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्लाई ऐश ब्रिक बोलते हैं उसे। Adding 15 to 30% fly ash in cement, blended cement is produced. The blended cement has got very good weather resistance capacity, as it is more durable than ordinary Portland cement. Hence, use of blended port cement is becoming more popular than ordinary Portland cement. अब क्या किए, फ्लाई ऐश को एकदम एज अ ब्रिक में यूज़ करेंगे, जिससे हम फ्लाई ऐश ब्रिक बोलते हैं। उसके अलावा आप फ्लाई ऐश को सीमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना, या सीमेंट के इसमें ऐड कर सकते हो। सीमेंट को जब हम, जैसे कि आपका 50% आप सीमेंट यूज़ कर रहे हो, जैसा फॉर एग्जांपल आप 80% मान लीजिए, 80% आपने सीमेंट यूज़ किए, आपको 100% सीमेंट चाहिए था, लेकिन आपने यूज़ किया 80% सीमेंट, उसके बाद 20% आपने फ्लाई ऐश को यूज़ किया, यानी कि सीमेंट को 20% रिप्लेस किया। तो जब आप रिप्लेस करोगे तो वो एक बन जाता है ब्लेंडेड सीमेंट, और वो सीमेंट बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फ्लाई ऐश जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल ही है, तो वो सीमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना देती है, ठीक है, इवन मोर स्ट्रॉन्ग देन पोर्टलैंड सीमेंट, जो ऑर्डिनरी सीमेंट है उससे भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है फ्लाई ऐश के बारे में, ठीक है। फ्लाई ऐश जो कि बड़े अच्छे से हम याद रखेंगे, इसको फ्लाई ऐश को ब्रिक में यूज़ करेंगे और सीमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट का रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। देखिए, इसमें क्या होता है, द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग विच इज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपांडेड स्लैग बाय ट्रिपिंग स्टीम व्हाइल कूलिंग प्रोसेस ऑन। जब हम आयरन फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, आयरन फॉर्मेशन में जो बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है वो मिलता है एक्सपांडेड स्लैग, ठीक है ना। वो कब मिलता है, जब हम इसको कूल करते हैं, प्रोसेस जब कूल होती है, प्रोसेस जब ये सब कूल होता है, तो जो मिलता है हमें इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, इस तरीके से हमको मिलता है, ठीक है। इसका हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए, तो जो हमको कूलिंग प्रोसेस से मिलता है ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बोलते हैं उसको, GGBFS, from cement industries are used as a replacement of cement. इसको भी हम सीमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। It is found that 5% strength is lost. कितनी स्ट्रेंथ कम हुई, 5%। अगर 40% सीमेंट को हम रिप्लेस करेंगे इससे, GGBFS से, ठीक है, याद रखेंगे, अगर हमने 40%, 60% नॉर्मल सीमेंट यूज़ की और 40% अगर हम GGBFS यानी कि आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को यूज़ किए, तो 5% स्ट्रेंथ ही कम होगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। बट इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि हाउएवर इन दिस केस स्ट्रेंथ गेन इज लो। इसमें जब हम ये कंक्रीट जब हम यूज़ करते हैं ना, इसका कॉम्बिनेशन स्लैग सीमेंट वाला, तो जहाँ पे हमको 28 डेज में एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती थी सीमेंट की, अब उसे लगेंगे 60 डेज, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ जो अक्वायर करने का जो टाइम है, दैट विल इंक्रीज। जहाँ पे हमको एक नॉर्मल कंक्रीट को 28 डेज में स्ट्रेंथ मिल जा रही है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को 60 डेज में मिलती है। बस इसकी यही प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो है, ठीक है, अदरवाइज इट इज कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट सिमिलर। हाउएवर इट इज द बेस्ट मीन्स ऑफ रिसाइकलिंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम इस तरीके से काफ़ी आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के बारे में। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल स्टील, हमने देख चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल स्टील हमने देख चुके हैं, ठीक
ठीक है, स्टील भी देख लिया हमने और ये सारे मटेरियल्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे। हमने ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स की स्टडी कर चुके, पूरे वीडियोस अवेलेबल है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। ओके, थैंक यू।